न्यूज़ कर लो आज। Okay. Ministry of Textile schemes in news. Uh, The Ministry of Textiles in March 2021 informed the Parliament that seven mega textile parks will be set in next 3 years, enabling the textile industry to become global competitive, attract large investment, and boost employment generation. Objective है to provide the industry with world-class state-of-the-art infrastructure facilities for setting up their textile units, to facilitate textile units to meet international environmental and social standards, to mobilize private investment in the textile sector and generate fresh employment opportunities. Features. It was launched by merging two schemes, namely Apparel Parks for Export Scheme (APES) and Centers Infrastructure Development Scheme in 2005. The scheme targets industrial cluster location with high growth potential, which requires strategic intervention by way of providing world class infrastructure support. PPP mode is followed to set up integrated textile parks. It is a demand driven scheme in which the prospective entrepreneurs can send their proposal to the government after completion of stipulated conditions as per guidelines. And ITP will include following components. First, क्या land must be more than 20 acres under SPV, common infrastructure, roads, water and electricity supply, etc. Building for common facilities, training center, testing lab, etc. Factory buildings for production purpose. The ITPs can also get benefits from amended technology upgradation fund scheme, Samarth, etc. Funding क्या है? Central government will bear 40% of the project cost, 90% of the project cost for first two projects each in the special category state, up to 40 crores through grants in three installments. The funds are released in the form of bank loans and grant equity by the Ministry of Textile, State Industrial Development Corporation, and Industrial Project Management Consultant. Project cost will also cover support activities such as textile machinery, textile engineering, accessories, packaging, etc., depending on the needs of ITP. नहीं, बस इतना ही था। तो इसमें है यही कि मार्च 2021 तक ये 3 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है, इनका मेन मोटिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड, मतलब जो भी वस्त्र इकाइयाँ हैं उन्हें, मतलब वर्ल्ड क्लास उनका इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि उनकी जो संरचनात्मक जो सुविधाएं हैं सभी को वो बीट कर सके, टू फैसिलिटेट टेक्सटाइल यूनिट टू मीट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी मानक है उसको वो पूरा करें। और टू मोबिलाइज प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब निजी निवेश का भी इसमें प्रोत्साहन की बात कही गई है, ताकि नए नए रोजगार इसमें सृजित हों। हाँ, मतलब इसमें है कि 2005 में ये एपीईएस और टीसीआईडीएस जो था, ये दो योजनाएं थी, इनका विलय करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि ग्रोथ पोटेंशियल, हाँ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। और फिर पीपीपी मॉडल इसमें भी इस पीपी मॉडल के तहत इसको किया जाएगा। ये डिमांड ड्रिवन है, मेनली मांग आधारित योजना, मतलब जैसी मांग होगी उस आधार पर इसको पूरा करना है। और इसमें एक निम्न घटक है, जैसे भूमि है और सामान्य अवसंरचना है, और क्या नाम है, सामान्य जो भी सुविधाएं हैं, भवन, प्रशिक्षण केंद्र, प्रयोगशाला, कारखाने। तो लैंड में क्या है कि यही 20 एकर्स हैं, जो कि एसपीवी के तहत इसे किया जाएगा। और फिर क्या है कि आईटीपी को 80
ये मतलब ये जो इसमें बेनिफिट्स फ्रॉम ये अमेंडेड टेक्नोलॉजी, ये क्या चीज़ का स्कीम है? ये दोनों स्कीम पता है क्या? थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। टेक्सटाइल की है। क्या हाँ। क्या? अमेंडे टेक्नोलॉजी वाली भी टेक्सटाइल की है। और अच्छा सामर्थ भी टेक्सटाइल का है। अच्छा अच्छा। ओके। कॉमर्स तो आई थिंक स्किल ट्रेनिंग को लेके था ना। हाँ शायद सही कुछ था इसका। फुल फॉर्म चेक करना, कर लो और क्या। हाँ वो उस दिन अपन बात भी कर रहे थे, वो स्किल से रिलेटेड है। एक एक बार साथी था, सामने- फिर सामर्थ्य ये था आपका। हाँ, साथ ही भी था, सही बोल रहा है। एक पावर हैंडलूम वाला जो नहीं था, पावर हैंडलूम जिसमें रिलेटेड था, वो कौन सी थी? यही स्कीम थी क्या, समर? एक बार ऐसा करते, पहले इसको रीड कर लेते, फिर ये ठीक दोनों है। स्कीम देंगे, ठीक है? ओके। तो इसमें फंडिंग में क्या है कि जो 40% इसकी फंडिंग है, वो भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिसका अधिकतम सीमा 40 करोड़ तक होगी, और ये 3 किश्त में दी जाएगी। लेकिन जो भी ये स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, उनका 90% कॉस्ट ये सेंटर बियर करेगी। यही है ना? हाँ, द फंड्स आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स। मतलब फंड को बैंक लोन और क्या नाम है, ग्रांट और इक्विटी के तहत दिया जाएगा, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इन सभी के द्वारा ये होगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट विल आल्सो कवर सपोर्ट एक्टिविटीज। मतलब इसमें और भी जो भी इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उसमें जितनी भी आईटीपी का के लिए, जैसे टेक्सटाइल मशीनरी है, और ये इंजीनियरिंग टेक्सटाइल और जो भी उपकरण हैं, जो पैकेजिंग है, वो सारी गतिविधियों में जितना भी कॉस्ट होगा ना, वो सभी इसके अंदर बियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वाली स्कीम्स देख लेते हैं एक बार। एक समर्थ एचआरडी की भी थी ना? हाँ यार, ये समर्थ और ये काफी के अंदर स्कीम्स के अंदर देखने मिलती है, सेम ही नाम। ये देखो, इग्नू का भी समर्थ है। इसी में होगा तुम? क्या? इसी में हो क्या, इग्नू वाले में, पॉलिटिकल साइंस में?
have to be placed in wage employment, while for courses in traditional sector, at least 50% are to be placed in wage employment. Post-placement tracking will be mandatory under the scheme. Preference given to marginalized social groups and 117 aspirational districts, public grievance redressal system. For self-employment, concessional credit under the Pradhan Mantri Mudra Yojana will be provided for beneficiaries. मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इतना ही याद रखने की जरूरत है ना? ठीक है। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे स्पिनिंग एंड वीविंग को अगर हटाया यहाँ पे तो फिर एक मिनट, इसके लिए कोई अलग से स्कीम है क्या जो इसे हटा दिया है इसमें? मुझे आइडिया नहीं है इसका। वो कौन सी थी यार, सूरज चरखा वाली? फिर तो खादी उसमें आएगा ना, इसलिए हाँ इसमें शायद। और एक समर्थ है जो मैंने देखा था, वो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जो मतलब मैंने एक इमेज भेजी है, वो देख लेना। उसमें मतलब MHRD has developed e-governance platform Samarth Enterprises Resource Planning ERP under the National Mission of Educational Information and Communication Technology Scheme. ये क्या है? It is an open standard, open source architecture, secure, scalable and evolutionary process automation engine for universities and higher educational institutions. इसके benefits है, it will help faculty, students and staff at a university and higher educational institutes. Samarth for first time has been implemented at National Institute of Technology, Kurukshetra. Objective is to automate the process of the institute and enhance productivity. हाँ, ये भी आई थिंक इग्नू वाला देख रहे थे ना, तो सबको ये कॉमन प्लेटफॉर्म दिया है, तो वो सब यूनिवर्सिटीज है इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो किसी को भी अलग से आईटी सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना प्लेटफॉर्म उठाओ, सारा डेटा उठाओ और समर्थ के ऊपर डाल दो, बस इतना ही काम। ऐसे स्केलेबल मॉडल इन्होंने पंचायत के लिए, सॉरी म्यूनसिपैलिटीज है ना, उनके लिए भी लिए। तो अगर आप देखते होगे, अगर आपने कभी खोला होगा अपना म्यूनसिपैलिटी एरिया का, आपको देखने को मिला होगा कि काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया, और वो ऑल ओवर इंडिया स्केलेबल मॉडल यूज किया। वही सेम चीज समर्थ में भी। फिर हम दूसरी स्कीम भी देखनी थी ना एक। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, अमेंडेड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम है ना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ट्रू या फॉल्स? सेक्टर, ट्रू। राइट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हाँ, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द फंड्स वो सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर ही होंगे, मतलब मुझे जो लगता है। ठीक है, एक बार दृष्टि वाले ने दोस्त किया इस पे। मुद्रा भी वही था ना, सेंट्रल सेक्टर था, जो मुद्रा में जो फाइनेंस कर रहा था, वो नाबार्ड को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देगी। ठीक है, ये बार कोई रीड कर दो यार, टीवी पे। अच्छा, Amended Technology Upgradation Fund Scheme. The Technology Upgradation Fund Scheme was introduced by the government in 1999 to facilitate new and appropriate technology for making the textile industry globally competitive and to reduce the capital cost for the textile industry. मेरे ख्याल से इसीलिए शायद से वो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कॉन्सेप्ट आया होगा। In 2015, the government approved Amended Technology Upgradation Fund Scheme for technology upgradation of the textile industry, attracting foreign investors. आगे पढ़ना है? नहीं, वो तो ओवरऑल चीज है, वो आई थिंक नीडेड नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट पे भी डिस्क्रिप्शन दिया है इसका, एक बार इसका बता सकते हो थोड़ा? ठीक है। Amended Technology Upgradation Fund, Ministry of Textiles, with aim of making India and zero defect and zero effect in manufacturing. The government provides
credit-linked capital investment subsidy. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, export and import substitution in textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery manufacturing. Scheme benefits and highlights. Every eligible individual entity, not the unit, will be entitled for reimbursement of capital investment subsidy under the scheme as per the following rates. Rates तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से पहला वाला पढ़ लेते हैं. गारमेंटिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे आपको 15% सब्जेक्ट टू अपर लिमिट 30 करोड़ मैक्सिमम मिलेगा, तो 15% की सब्सिडी मिलेगी, वो भी कैपिटल पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर. एक में बस सेगमेंट्स पढ़ दो आप एक बार तो. अच्छा, पहला सेगमेंट है गारमेंटिंग का, दूसरा है वीविंग फॉर ब्रांड न्यू शटललेस लूम्स इंक्लूडिंग वीविंग प्रिपरेटरी एंड निटिंग प्रोसेसिंग जूट सिल्क एंड हैंडलूम. तीसरा है कंपोजिट यूनिट मल्टीपल सेगमेंट्स if the eligible capital investment in respect of garmenting and technical textile category is more than 50% of the eligible project cost. चौथा है composite unit or multiple segments if the eligible capital investment in respect of garmenting and technical textiles category is less than 50% of the project cost. ठीक है, 4 सेगमेंट है. पहला कपड़े का है, फिर दूसरा वीविंग का है, और तीसरा वो ग्रुप वाइज है जिसमें कि एक है 50% से ऊपर का और दूसरा है 50% से नीचे का. Second hand machines will not be eligible, and for more details about the type of machines eligible under the scheme. Second hand machines नहीं eligible है, मतलब आप कोई भी नई मशीन लगाएंगे तो आपको ये सब्सिडी दी जाएगी. Eligibility है weaving preparatory and knitting, processing of fiber, yarn, fabric, garments and made up, handloom sector, silk sector, jute sector, garment made up manufacturing, टेक्निकल टेक्सटाइल्स. अभी हमने कोई एक स्कीम पढ़ी थी ना जहाँ पे ये सेकेंड हैंड मशीनरीज के लिए भी कुछ पैसा दे रहे थे, किसी को याद है क्या? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पढ़ा होगा ना इसमें कुछ. उसकी लिंक भेज देना ग्रुप में, वो जो अभी AUTF ये किया था ना उसकी. हाँ, ये स्पिनिंग और वीविंग को कोई पूछ रहा था ना इसमें क्यों एक्सक्लूड क्यों किया है. किसी को पता है क्यों? स्पिनिंग एंड वीविंग में अपग्रेडेशन क्या करोगे? उसमें एक्चुअली जॉब्स का रहा ना कि शायद स्किल की इतनी जरूरत नहीं है शायद, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव स्किल प्रोवाइड कराना और जॉब प्रोवाइड कराना था ना. आई थिंक वो मतलब स्पिनिंग और वीविंग तो हैंडलूम वाला हो गया ना, हाथों से कर रहे हैं जो मैनुअल वाला हो गया ना. मैनुअल वाला. ठीक है, तो चलते हैं. तो नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. तो ये थोड़ा देखो कौन पढ़ेगा यार इसको. नीबल आप पढ़ रहे हो क्या? ये टेक्सटाइल के बारे में कुछ फैक्ट्स बोल दो. कॉटन हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? इंडिया. ओके, सही है. टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स में कुछ रहेंगे क्या अपना? बांग्लादेश नंबर 1 है ना. कौन है नंबर 1 पे? बांग्लादेश ने इंडिया को. बांग्लादेश का जूट में है ना शायद से. नहीं ओवरऑल. अपना क्या रहेंगे? कॉटन में स्टेट के लिए क्या है, महाराष्ट्र है या गुजरात? महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल तो वही मिलता है ना. महाराष्ट्र में. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. क्या ये वियतनाम भी हमसे आगे है क्या? शायद बांग्लादेश और वियतनाम दोनों में शायद. ओके. Ministry of Tourism, National Mission on Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive Prasad Scheme. Recently, Tourist Facilitation Center facility at Guruvayur, Kerala was inaugurated under Prasad Scheme. Objective: integrated development of pilgrimage destinations in a planned, prioritized and sustainable manner
to provide complete religious tourism experience. Second, harness pilgrimage tourism for its direct and multiplier effect upon employment generation and economic development, enhancing the tourist attractiveness in a sustainable manner by developing world-class infrastructure in the religious destinations. Fourth, promote local art, culture, handicraft, cuisine, etc. Salient features: it is a central sector scheme. The scheme aims at infrastructure development such as entry points, road, rail, and water transport, last mile connectivity, basic tourism facilities like information interpretation centers, ATM, money exchange, eco-friendly modes of transport, etc. For components within public funding, central government will provide 100% fund. For improved sustainability of the project, efforts shall be made to involve public-private partnership and CSR as well. Center has included Gangotri and Yamunotri in Uttarakhand, Amarkantak in Madhya Pradesh, and Prasnath in Jharkhand in the scheme. ठीक है, प्रसाद स्कीम है और इसका एक फैसिलिटेशन सेंटर खुला है केरला में और पिलग्रिमेज के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए है और जिससे कि डायरेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बढ़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, काम मिलेगा और लोकल आर्ट कल्चर को भी प्रमोट करना है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 100% फंड प्रोवाइड करेगी और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने एंट्री पॉइंट्स को डेवलप करना है, रोड, रेल, वाटर और लास्ट माइल, मतलब हर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को करना है, ATM, मनी सारा फैसिलिटेट कराना है और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड CSR का भी वो कराना है, शायद से एफर्ट्स करना है कि ये भी इन्वॉल्व हो और सेंटर ने इंक्लूड किया है गंगोत्री और यमुनोत्री इन उत्तराखंड, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश दूसरा एंड प्रसनाथ इन झारखंड। प्रसनाथ यही बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? पारसनाथ, सॉरी, पारसनाथ इन झारखंड। ठीक है, ये पारसनाथ कौन से राइटी से रिलेटेड है? जैन। करेक्ट। पारसनाथ कौन से वाले वो थे तीर्थंकर? नंबर 23rd। महावीर के पहले वाला। सही है। और गुरुवायूर में की प्रिंसिपल डाइटी कौन है? गुरुवायूर टेम्पल में कौन से में? गुरुवायूर, केरला में ना? हाँ शायद विष्णु है, आई थिंक विष्णु ही है, बिकॉज अभी मोदी जी शायद लास्ट ईयर गए थे यहाँ पे। और किसी टेम्पल के प्रसाद को ये मिला है ना, GI टैग मिला है। वो तो तिरुपति का जो लड्डू मिलता है ना? नहीं वो तो है, लेकिन इसमें भी हाँ, पालानी टेम्पल गेट्स GI टैग। पंचामृत उनका जो है उसे GI टैग मिल गया है। राजस्थान में ना बालाजी? नहीं, पालानी, हाँ पलानी, तमिलनाडु में। सही है। और बालाजी तो आंध्रा में है ना? बालाजी तो सब जगह है। नहीं, बालाजी का मेन वाला कहाँ पे? गुरुवायूर कृष्णा के लिए है। वही विष्णु ना? हाँ बट राइट, ठीक है। ये प्लान जो भी पलानी था, इसका प्रसाद का नाम क्या बोला? पंचामृतम, मतलब जो पंचामृत देते हैं ना उसे GI टैग मिला है उसको। अमृत टाइप का कुछ ऐसा? हाँ पंचामृत, मतलब जिसमें मतलब दूध, दही, घी वगैरह, ये 5 टाइप के केला वगैरह, मतलब जो भी देते हैं वो 5 चीजों से मिलके बनता है ना पंचामृत। हाँ 5 चीजों से मिलके बनता है। जो मंदिरों में हाथ में पीने को नहीं मिलता है वही? हाँ वही है। It's the Ministry of Tribal Affairs. तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम, तो कोई पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ देती हूँ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम वर रिवाइज्ड इन November 2020. Objective is establishing quality residential schools for the promotion of education
and also to ensure all-round development of tribal students in all areas, habitations, and diversified environment throughout the country, the Eklavya Model Residential Schools. Second is to provide quality upper primary, secondary, and senior secondary level education to ST and particularly vulnerable tribal group students in tribal dominated areas, along with extracurricular activities to enable them to access the best opportunities in education and to bring them at par with the general population. It is a central sector scheme. Every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal person will have an Eklavya model residential school by the year 2022. These schools will be on par with Navodaya Vidyalaya and will have special facility for preserving local art and culture besides providing training in sports and skill development. 12 Eklavya Model Day boarding school will be set based on the demand of the concerned state where density of ST population is higher in identified sub-districts. It should be 90% or more. Dedicated infrastructure for setting up Center of Excellence for Sports with all related infrastructure, building, equipment, etc. will be supported. This Center of Excellence will have specialized state-of-the-art facilities for one identified individual sport and one group sport in each state or union territory. Reservation of 20% seats under the sports quota for deserving ST students who have excellence in the field of sports. Funding under this scheme will be 100% grant in aid by the Ministry of Tribal Affairs to NESTs, National Education Society for Tribal Students. The next will be guided by a steering committee headed by the Ministry of Tribal Affairs. Mainly tribal students के लिए है ये स्कीम और दूसरा है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन देना है अपर प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, तीनों ही लेवल पे टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड PVTGs और एक्स्ट्रा करिकुलर सारी चीज़ें होंगी. एंड ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. हर वो ब्लॉक जहाँ पे 50% से अधिक है ST पॉपुलेशन एंड वाला सिचुएशन है और कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन्स हों, वहाँ पे ये स्कूल्स खोले जाएंगे 2022 तक. और ये नवोदय विद्यालय के गाइडलाइंस पे होंगे, उनके जैसे ही होंगे. और अभी तक 12 एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल विल बी सेट based on the demand of the concerned state where density of ST population is higher in identified sub-districts 90% or more. Okay, जहाँ पे इनका जो composition है 90% या उससे ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेट की डिमांड पे 12 ऐसे मॉडल डे स्कूल्स खोले जाएंगे. और ये एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए. एंड इसमें कि 1 आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल स्पोर्ट होगा एंड 1 ग्रुप स्पोर्ट होगा इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. और इसे 20% का रिजर्वेशन मिलेगा स्पोर्ट्स कोटा में और 100% ग्रांट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा. और इसको इन नेक्स्ट को जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसको स्टीयरिंग कमेटी जिसको हेड करेगा मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स. जी ब्लॉक पर डिस्ट्रिक्ट क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक फर्दर यूनिट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड. अच्छा, ये वाला पॉइंट पता था क्या, ये जो ट्राइबल मिनिस्टर्स को हेड करता है, जो क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नॉर्मली नहीं आता है. ट्राइबल की कोई भी चीज होगी, चाहे उनका फंड होगा चाहे वो होगा, सारा ट्राइबल मिनिस्ट्री ही देखेगा. नहीं, इसको मिनिस्टर हेड कर रहा है ना, ये जो इसकी जो सोसाइटी है. नहीं, ये नहीं पता, लेकिन नाम से तो ऐसा नहीं लग रहा ना कि सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स को मिनिस्टर हेड कर रहा है. नहीं, नेक्स्ट को नहीं हेड कर रहा है, वो स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहा है और वो सिर्फ गाइड करेगी. ओके, हाँ समझ गया. ओके, ठीक है, बराबर. अच्छा, इसी तरह किसमें थी कि 2 कमेटी थी, कि एक स्टीयरिंग कमेटी थी और एक और एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, एक में हेड कोई और था. कौन सी स्कीम थी?
कोई तो PM इसमें थे। हाँ पीएम था एग्जीक्यूटिव में, ऐसा कुछ था। हाँ, एक में PM था और एक में शायद वाइस प्रेसिडेंट, ओ सॉरी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग था। हाँ, ये स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना, पीएम सिंचाई केसर। हाँ, पीछे पन्ने पलटे तो मिला मुझे। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट प्रधानमंत्री वंदन योजना, ये शशांक की फेवरेट स्कीम। ठीक है, कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेगा। अच्छा, नहीं, पढ़ लो दीप्ति, वो अरे नहीं नहीं, हाँ पढ़ेगी। पढ़ लो, आई वाज जस्ट किडिंग। okay. So, Pradhan Mantri Vandhan Yojana. In June 2020, the coverage of the scheme was proposed to be expanded from the current 18,000 SHGs to 50,000 Vandhan SHGs. Coverage of tribal gatherers to be increased threefold to 10 lakh. Objective: to provide skill upgradation and capacity building training, setting up of primary processing and value addition facility. Then features: the scheme is a component of mechanism for marketing of minor forest produce MFP through minimum support price and development of value chain for MFP, and it's launched in 2018. So it is mechanism for MFP, marketing of MFP through MSP, and development of value chain for MFP. So implemented by TriFed as the nodal agency at the national level. It is a well thought master plan for the socio-economic development of tribal population of the country. Main provisions: an initiative targeting livelihood generation for tribal gatherers and transforming them into entrepreneurs. The idea is to set up tribal community owned Vandhan Vikas Kendras, VDVKs, in predominantly forested tribal districts. Kendra shall constitute of 15 tribal SHGs, each comprising up to 20 tribal NTFP gatherers. NTFP is does anybody know what NTFP is? है ना, forest non timber forest produce. Okay, right. So each comprising of up to 20 tribal non-timber forest produce gatherers or artisans, that is about 300 beneficiaries per Vandhan Kendra. So 100% central government funded with TriFed, providing rupees 15 lakh for each 300 member Vandhan Kendra. Then tribal gatherer contribution of rupees 1,000 per member to instill ownership. Panchayats or district administration to provide operational premises to SHGs. Training and value addition, use of equipment, enterprise management. So, YN News, Pradhan Mantri Vandhan Yojana, YN News, it has the coverage of this scheme was proposed to be expanded from 18,000 SHGs to 50,000 Vandhan SHGs, and coverage of tribal gatherers to be increased threefold. So SHGs from 18,000 to 50,000 and tribal gatherers up to 10 lakhs. Then objective is skill upgradation and capacity building training, and setting up of primary processing and value addition facility. So this feature is it's a mechanism for marketing of MFP, minor forest produce, through MSP, and development of value chain for MFP. Then this is implemented by TriFed. Then it is a well thought. It's a plan socio-economic development of tribal population of the country. Then provisions is livelihood generation for tribal gatherers and transforming them into entrepreneurs. Then tribal community. The idea is to set up Vandhan Vikas Kendras. And each Vandhan Vikas Kendra, I think, has 15 tribal SHGs
constitutes of 15 tribal SHGs, and each comprising up to 20 tribal NTFP, that is non-tribal forest produce gatherers. So each SHG will have 20 gatherers or artisans and up to 300 beneficiaries per Bandhan Kendra. 100% central government funded, with TriFed providing 15 lakhs for each 300 member Bandhan Kendra. So each Kendra has 15 lakh fund. Then tribal gatherers contribute a contribution of contribution of rupees 1,000 per member to instill ownership. Then panchayats or district administration to provide operational premises to SHGs. Then training and in value addition, use of equipment, enterprise management. So this was प्रधानमंत्री वंदन योजना. Right. नीचे भी है थोड़ा, देख लेना. Okay. So identification of local, district level, state level, national, global buyers for MFP and value added products. Then arrangement of logistics and transport, branding and marketing. एक रिसेंटली ट्राइबल्स के लिए स्कीम भी था ना, गोल करके, गोल GOAL. हाँ, वो लास्ट ईयर था ना. हाँ, करेक्ट. तो बेसिकली उसमें ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक का जॉइंट वो था, कोलैबोरेशन. ऑनलाइन डिजिटल स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड था क्या? हाँ, स्किल डेवलपमेंट था कि उनको डिजिटल लिटरेसी दी जाए और उन्हें और भी लाइफ स्किल्स के कुछ जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे स्किल दिया जाए ऑनलाइन मीडियम पे. Going online as leaders. Correct. Going online as leaders. Okay, next, scheme for mechanism for marketing of minor forest produce through MSP and development of value chain for MFP. तो जो हमने ऊपर स्कीम पढ़ा था ना, बस ये वाला, ठीक है, वही चीज़ है. Various MFP have been included under the scheme in previous 1 year to ensure fair returns to MFP gatherers, mainly through MSP for the identified MFP minor forest produce collected by them, along with necessary infrastructure at local level. The scheme is designed as a social safety net for improvement of livelihood of minor forest producer gatherer by providing them fair price for the minor forest produce they collect. Conceptualized and implemented by TriFed in association with the state government. Okay. So TriFed in association with state government across 21 states of the country. The scheme emerged as a source of great relief for tribal gatherers, and to ensure that the ground gained is not lost, and to strengthen the state level program implementation and contribute the empowerment of tribal population. TriFed has initiated phase 2 of MSP and MFP scheme and the Vandhan tribal startup. During this phase, one of the major action being planned is the convergence of Vandhan Yojana with MSP and MFP, with the MSP for the MFP scheme. Together, these two initiatives offer a comprehensive development package for the tribals, promoting employment and incomes and entrepreneurship. So MFP is a subset of forest produce defined under Indian Forest Act 1927. Minor forest produce is defined under Scheduled Tribe and other forest dwelling act. Okay. So commonly recognition of forest right या forest right act के नाम से जाना जाता है 2006 के अंदर. तो उसके अंदर minor forest produce define किया हुआ है, तो ये चीज याद रखना. Section 2 of this act defines that all non-timber forest produce of plant origin, which includes bamboo. पहले bamboo जो था उसको भी वो timber में include कर लेते थे, तो बहुत ज़्यादा problem होता था, तो अब उस चीज को निकाल दिया. तो bamboo, brushwood, stumps, cane, tussar, cocoon, honey, waxes, lac, तेंदू. तेंदू लीव्स से क्या बनता है? बीड़ी जो बनती है, बीड़ी बनता है. करेक्ट. प्लेट्स भी बन सकता है ना? प्लेट्स बनते मेनली प्लेट्स. हाँ, प्लेट्स भी बनते हैं. प्लेट भी बनता है. हाँ.
तो वो काफी अच्छा इनकम सोर्स रहता है इनके लिए। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स। बिगेस्ट स्टेट कौन सा है तेंदुआ लीव्स प्रोड्यूस करने वाला? एमपी। ओडिशा। I think Andhra. उड़ीसा। एमपी में हाँ, जंगल लगा है। एमपी करेक्ट। हाँ MP, then Chhattisgarh, then Odisha. मतलब वही जंगल वाले साइज में हो गया ना, इसका सबसे बड़ा तो फॉरेस्ट है ओडिशा उसको। ओडिशा में क्यों इतना फेमस है फिर? क्या? यही अभी इसने नीति ने लिखा था ना कि वो ग्रीन गोल्ड क्या कहते हैं उड़ीसा में उसे। हाँ, ग्रीन तो गोल्ड ट्राइबल्स के लिए मेजर इनकम का सोर्स है ना, इसलिए उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। उड़ीसा में green सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीवीटीजीज है ना, 13 पीवीटीजीज वही है। ओके ओके। बहुत पीते भी है यहाँ बीड़ी, ठीक है। बात है। और नेक्स्ट चलते हैं, मिसलेनियस इनिशिएटिव। तो कोई पढ़ेगा? ठीक है, तो मैं ट्राई फूड। पढ़ लो पढ़ो। Tri-Food Spurti model. In November 2020, the Ministry of Tribal Affairs announced 200 projects to be taken up under Tri-Food or Spurti model. Tri-Food Spurti model क्या है? It is one of the convergence initiative of the Tribal Cooperating Marketing Development Federation of India, TriFed. The first such model was launched in August 2020 in Raigad, Maharashtra and Jagdalpur, Chhattisgarh. It will ensure year-round income for the tribal population through cluster programs for agriculture, horticulture, sericulture, floriculture, medicinal and aromatic plants. ठीक है, जो ट्राई फूड या फिर स्फूर्ति मॉडल क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी ट्राइफेड है और द फर्स्ट मॉडल वाज लॉन्च इन अगस्त 2020 रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदालपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये वही फिर से इनकम मतलब इनकम प्रोडक्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए है और वेरियस एग्रीकल्चर उन सब में, जो अब तक देखते आए अपन। नेक्स्ट इज ट्राई फूड स्कीम. इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री and Ministry of Tribal Affairs with the help of TriFed. Okay, under the scheme, tertiary value addition centers will be set up for processing the MFP, minor forest produce collected by the tribal forest gatherers. The processing unit will be set up under the scheme for creation of backward and forward linkages under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY). It aims to enhance the income of tribals. Okay, note क्या है स्फूर्ति, that is scheme of fund for regeneration of traditional industries is covered under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise MSME. So ट्राई फूड स्कीम क्या है कि ये MOFPI, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड, इनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, टर्शरी वैल्यू एडिशन सेंटर्स खोले जाएंगे फॉर दी MFP, मतलब वैल्यू एडिशन होगा उनका, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उनको आगे लेके जाया जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी प्रोवाइड की जाएगी अंडर जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर होती है। इससे भी ट्राइबल्स का जो इनकम है वो एनहांस करने का इसका वो है। और जो स्फूर्ति है वो MSME के अंडर कवर है। इसमें क्या है, नीचे है क्या कुछ? नहीं नीचे नहीं। अच्छा, ये संपदा में allied अच्छा ओके, तो मतलब कि स्फूर्ति का स्कीम है, मिनिस्ट्री है अपनी MSME, और ट्राई फूड की जो स्कीम है वो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब फूड प्रोसेसिंग और ट्राइबल अफेयर्स। ये संपदा allied एक्टिविटीज के लिए थी क्या? फूड प्रोसेसिंग के लिए थी ना। अच्छा, मेगा फूड पार्क इसी में थे ना सर? हाँ, वो पूरा अम्ब्रेला स्कीम है संपदा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ICDF। और आप पढ़ोगे इसको? विजय जी पढ़ देंगे तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा, हम बहुत स्लो पढ़ते हैं।
नहीं नहीं, आप बढ़िया एक्सप्लेन करोगे, ये एक्सप्लेन कर दो आप। अच्छा, ठीक। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। हाँ, recently Niti Aayog undertook evaluation of Poshan Abhiyan, which is an integral part of ICDS. Objective क्या है? To prevent and reduce young child undernutrition. दिख नहीं रहा, थोड़ा सा आप कर दीजिए। हाँ, percentage underweight children 2 to 3 years by 10 percentage points to lay the foundation for proper psychological, physical, and social development of the child, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition, and school dropout, to achieve effective coordination of poly client implementation, ये policy एंड है। अच्छा policy and implementation amongst the various departments to promote child development, to enhance the capability of mother to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education. Okay, salient features. It is a centrally sponsored scheme launched on 2nd October 1975. The ICDS scheme is one of the world's largest and unique programs for early childhood care and development. It is centrally sponsored scheme engaging Anganwadi worker and helper from the same village. It is a universal and selecting scheme, that is anyone can visit to the Anganwadi center and enroll these services. इसमें सब scheme under the umbrella ICDS है. Anganwadi services, it is for a holistic development of children under the age of 6 years and pregnant and lactating women. और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इसमें है. इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन need of care and protection and reduce vulnerabilities. National Trade and Services, it aims to provide a safe place for the children of working mothers while they are at the ये क्या है? Work does empowering. अच्छा, work does empowering them to take up employment. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना from 2017, the maternity benefit program is implemented in all the districts of the country. Under this scheme, a cash incentive of 5,000 is provided directly to the bank post office account of pregnant women and lactating mothers for the first living child of the family, subjecting to fulfilling specific condition relating to maternal and child health. Schemes for adolescent girls. The key objective of the scheme is to facilitate, educate, empower AGs so as to enable them to become self-reliant and aware citizen. The target group for the scheme cover out of the school AGs in the age group of 11 to 14 years. इसमें न्यूट्रिशन कंपोनेंट है. टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील या द फाइनेंशियल नॉर्म्स विल बी 9.5 rupees. अच्छा, rupees 9.5 per beneficiary per day for 30 days in a year. This would be inclusive of the cost of 300 days. अच्छा, क्या बोला मैंने? 300 days in a 300 days in a year. This would be inclusive of the cost of micronutrient fortification, non-nutrition component, IFA supplementation, health checkup, and referral services, nutrition and health education, NHE, counseling and guidance on family welfare, ARSHA, child care practices, life skill education, and assessing public services. Poshan Abhiyan. It aims to reduce malnutrition in country by 2022 in a phased manner. ये इसमें क्या है? ये सर्विसेज एंड टारगेट ग्रुप्स. सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इसमें टारगेट ग्रुप इसका क्या है कि चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, और इस इम्यूनाइजेशन है चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, हेल्थ चेकअप है, ये भी वही है, और रेफरल सर्विसेज भी सेम ही है। प्री स्कूल एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो 3 to 6 इयर्स, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है वुमेन की 15 to 45 इयर्स। तो ये 6 मेजर सर्विसेज है जो ICDS प्रोवाइड करता है, तो ये थोड़ा याद रखना, राइट। एक बार ऑब्जेक्टिव बोल दो फटाफट। मतलब ये ICDS ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें क्या है कि जो पोषण अभियान है उसके जो भी उसका नीति आयोग ने पूरा मूल्यांकन किया कि क्या स्थिति थी, मतलब क्या इफेक्ट हुआ एंड ऑल। तो इसके उद्देश्य क्या है कि जो भी छोटे बच्चे हैं और जो यंग चाइल्ड हैं उनका जो अंडर वेट है उनको 10% मतलब से कम करना है। मतलब अभी क्या है इस समय नहीं पता। तो इसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि जो भी बच्चे हैं उनके मतलब शारीरिक के साथ साथ उनका मानसिक भी विकास करना है, उनका सामाजिक विकास भी करना है, मतलब हर तरीके का सर्वांगीण विकास करने की बात की गई है इसमें। और टू रिड्यूस द मतलब जो मृत्यु बच्चों की या फिर उनकी जो मतलब तबीयत नहीं सही रह रही है, माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, या स्कूल वो जल्दी छोड़ देते हैं, इन सभी घटनाओं को कम करने का इसमें है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें जो भी बाल विकास से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं और उनके जो भी उनके पॉलिसीज या स्कीम्स हैं उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए है कि मतलब ताकि सभी एक साथ अच्छे से मिलकर इसको कार्य रूप में परिणत करें। और इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक मतलब इसमें माँ की क्षमता में भी वृद्धि करनी है ताकि वो अपने बच्चे के पोषण और उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी उसकी नीड्स है उसको पूरा करे। तो मतलब इसीलिए उसमें बच्चे और माँ दोनों को इस स्कीम में लिया गया है। तो इसमें विशेषताएं इसकी मेनली ये हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये ICDS तो बहुत पुरानी मतलब ये योजना है 1975 की है। इसमें मेनली जो बच्चे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था रहती है उससे रिलेटेड इसमें पूरा चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट की बात है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और आंगनवाड़ी वर्कर मतलब आंगनवाड़ी वाला जो पूरा सिस्टम है वो मोस्टली इन्हीं बच्चों के लिए है, तो वो लोग इनकी मदद करेंगे, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है। और इट इज़ अ यूनिवर्सल एंड सेल्फ सेलेक्टिंग, मतलब इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास कौन सी आंगनवाड़ी है, इससे आप जहाँ भी जिस भी आंगनवाड़ी में जाके अपना एनरोलमेंट करा सकते हो और वहाँ की सर्विसेज आप ले सकते हो। और इसकी सब स्कीम्स हैं, मतलब एक तो आंगनवाड़ी सेवा है जिसमें 6 वर्ष से जितने भी कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिला है या जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है वो सभी वहाँ जाके अपनी जो भी वहाँ सर्विसेज है उसे ले सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस जो इसमें है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं उनको मतलब एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जाए, तो ताकि जो एक और इसके लिए क्या ये भी हो रहा है क्या कि जो लॉज है या उनमें कुछ कुछ आजकल लॉज में चेंजिंग की जा रही है, ये आई थिंक कुछ इधर हुआ है क्या ऐसा कुछ? वो एक्चुअली के लिए हुआ ना, पहले 18 से जो नीचे वाले थे उनको ऑफेंस कंसेप्ट मतलब बच्चा कंसिडर कर लेते थे। हाँ, वो 16 तक के बच्चे कितने हो गए अभी कि 14? हाँ मतलब नहीं वो एज तो अभी भी 18 ही है, बट कोई हीनियस क्राइम है ना कि बहुत ही घिनौना क्राइम कर दिया उसने, तो फिर वहाँ पे उसको 16 कंसिडर करके प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आंगनवाड़ी स्कीम, ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स और एक और चीज जो अपन ने पढ़ी थी, तो इनका क्या क्या था? आंगनवाड़ी कहाँ काम करते हैं, गांव में, ग्राम सभा या कहाँ पर?
गांव में ये लोग काम करती है, मतलब ये एक तरह से ये मेनली गांव में इसलिए होता है कि जो आजकल जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, या कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं वो चल रही है वो भी उन्हें नहीं पता होती है। तो ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग होती हैं जो इस टाइप की बच्चों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हुई या महिलाओं से रिलेटेड, वो उन्हें एक तो इस तरह की शिक्षा भी देती है और उन्हें मतलब वहां पे ये तरह तरह का क्या कहते हैं, हेल्प, हाँ उन्हें मतलब मोटिवेट हेल्प, भी करती हैं, जैसे कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, हर हाँ चीज हाँ के हाँ लिए। वही, हाँ, हाँ वो सब कुछ भी करती है। उसके लिए तो आशा वर्कर्स है ना, मतलब हेल्थ नहीं और नहीं डिलीवरी। हाँ वो तो आशा वर्कर्स है, बट ये आंगनवाड़ी लोग का मेनली यही होता है कि जितनी योजनाएं हैं सरकार की उसको प्रॉपर सही तरीके से उन्हें पहुंच रही हो। तो बाकी इनका क्या काम है ये तो बहुत ज्यादा नहीं पता, बट मेन तो ये भी है ना कि मतलब स्कूल में बच्चा जाता है 6 साल के बाद से, तो तब तक अगर बच्चे को जो प्ले स्कूल टाइप होता है ना, सरकारी स्कूल में तो हाँ नहीं हाँ होता, तो हाँ ये हाँ उनके लिए भी ये आंगनवाड़ी भी होता है, बच्चे वहाँ पे जा करते हैं। और बताया ना उधर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन की जो भी न्यूट्रिशन वैल्यूज है, ये भी यहाँ पर भी ये कुछ प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, कुछ मतलब ये सिक्स खाना सर्विसेज वाना। देखी है, सिक्स सर्विसेज देखी थी ना, सारी आंगनवाड़ी प्रोवाइड करती हैं। हाँ ये सारी इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और ये सारी चीजें ये वहाँ होती है। आंगनवाड़ी नीचे लेवल पे काम करता है, उसके ऊपर आशा होती है, उनको शायद 2-3 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं उनको और ट्रेनिंग भी हाँ दिया रहता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो शायद ब्रॉड लेवल हो, अच्छा डिस्ट्रिक्ट ठीक है। उतनी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, एटलीस्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में होती होंगी वो, बट वो ट्रेनिंग रहती है उनको। ठीक है, तो वो छोटा मोटा नर्स वाला काम भी कर सकते हैं, और उनका सैलरी वो इस इंसेंटिव पे बेस्ड होता है कि कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज उन्होंने करी है। ठीक है, एक और डाउट था, यहाँ पे 5,000 लिखा है लैक्टेटिंग और उनका पैसा, बट 6,000 है ना? अरे ये पता नहीं स्कीम में क्या लफड़ा है, वो कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं होता, बोलते हैं 2000 वो NSS मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, बताना कितना सही गलत है। एक ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यहाँ पर तो 5,000 देना होता है। लेकिन एक और स्कीम साथ में उन्होंने पढ़ी थी, जननी सुरक्षा योजना, वहाँ पर 1000 होता था। तो जो अपनी एक स्कीम है ना कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 6000 लिखा हुआ है, तो वो इन दोनों को क्लब करके 6000 बोला जाता है। तो हाँ, 5,000 यहाँ से और 1,000 जो एक्चुअली वो जननी वाली है वो बीपीएल के लिए है, तो बीपीएल वुमेन को मिलेगा वहाँ पे। इवन अपन जब स्कीम पढ़ रहे थे तो उधर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो जननी सुरक्षा योजना है उसमें बीपीएल वुमेन के लिए है वो, और 1000 रुपीज मिलेंगे यार आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओगे तो हाँ मतलब उनको इसमें, हाँ इसमें मतलब यही कंट्रोवर्सी हुआ था कि 6000 बोल के और फिर वो अलग अलग जगह से राउट करके 5000 ही दे रहे थे, तो कंट्रोवर्सी था इसके अंदर कि क्या हो रहा है ये। ये जो मातृ वंदना योजना है, इसके अंडर ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंसिडर करते हैं ना, या कोई और स्कीम के अंडर है? मतलब जिससे क्लासिफाई किया कि उन मदर्स को मिलेगा। आई थिंक ये तो एक ही चाइल्ड के लिए ना, तो ये तो हाँ ये सभी के लिए है, लेकिन चाइल्ड पर है इसमें। हाँ एक ही चाइल्ड के लिमिट है, वो जो तुम वो 1000 बीपीएल के लिए, तो ये 5000 किसके लिए? सबके लिए अलाउड है? 5000 ये वाली स्कीम में सबके लिए, जो जननी वाला है उसमें सिर्फ बीपीएल के लिए है। जननी ऐसा तो सुरक्षा नहीं होगा, सबके लिए अलाउड है। एक 500 वाली थी ना, 500 तो ये था कि अगर कोई बीपीएल इंस्टीट्यूशनल, वुमेन हाँ। अपने घर पे ही डिलीवरी करे तो उसको 500 कैश बेनिफिट मतलब दिया जाएगा, तो अपने घर पे ही करे वो। जननी सुरक्षा में था ना वो तो। हाँ वो 500 वाला उसमें भी था। घर पे नहीं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। घर पे ही था घर पे 500 के लिए घर पे था, इंस्टीट्यूशन में करोगे तो आपको 1000 है। नहीं दो, एक के नीचे दो थी, दोनों में इंस्टीट्यूशनल था, लेकिन एक में मेडिकल ब्लड सप्लाईज वगैरह मिल रहा था और दूसरे में मॉनिटरी सपोर्ट मिल रहा था। वो जननी सुरक्षा योजना था ना, उसी के अंडर मिल रहा था। तो जननी सुरक्षा में क्या है, एक तो मॉनिटरी बेनिफिट वेज को लेकर नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसी को लेकर, वो पूरा वो सिजेरियन और वो सब है ना, तो सिजेरियन में ब्लड भी चाहिए होता है, तो वहाँ पे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑपरेशन करा के देंगे, डिलीवरी करा के देंगे मतलब। हमने और सुबह का कोई क्वेश्चन देखा था ना, उसमें लिखा था ना
हाँ, थर्ड उसमें वो ऑप्शन क्या था? वेज लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे। वो जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें थर्ड स्टेटमेंट था कि उनको वेज लॉस कंपनसेट करेंगे। तो वेज लॉस नहीं कंपनसेट होता जननी सुरक्षा योजना में। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, यहाँ पे वेज लॉस जो है उसको कंसीडर करते हैं, इसीलिए 6,000 का अमाउंट देते हैं। देख लो यहाँ पे, ऑल एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स हु हैव देयर प्रेगनेंसी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2017 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये सभी वुमेन्स के एप्लीकेबल है। ठीक है, और वो और ये नीचे क्या लिखा है 5,000 वाला? 5,000 in 3 installments। ठीक है, the eligible beneficiary also receive cash incentive under जननी सुरक्षा योजना, thus and on average a woman gets 6,000। ठीक है, तो अभी वो जो गौरव बोल रहा था सही है एकदम ना। और पर उसका भी देख ले क्या, ये जननी सुरक्षा योजना देख लो, इसमें कितने भी बच्चे कर लो, कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, सब पे सरकार जो है आपको बेनिफिट देगी। राइट, लेकिन ये है कि पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, तो यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। राइट, इम्पोर्टेंट है। और वो मातृ वाली में वो फर्स्ट लिविंग चाइल्ड है ना, मतलब 1 लिविंग चाइल्ड। ऐसा है कि पहला बेबी की डेथ हो जाती है, अगर सेकंड चाइल्ड है उसको भी मिल जाएगा ना। हाँ, मतलब चाइल्ड अगर डेड हो गया तो फिर तो मतलब हाँ, तो जो नेक्स्ट बेबी होगा उसके लिए मिल जाएगा ऐसा। जैसे मान लो कि अगर एक बच्चा मतलब वो उसकी डिलीवरी हो गई और 1-2 साल में मर गया, तो उसके बाद भी अगर डिलीवरी हो जाए तो तब भी पैसे मिलेंगे? मेरे ख्याल से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो देखेंगे कि आपके ऑलरेडी कितने बच्चे हैं। हाँ, मतलब डिलीवरी के टाइम पे आपके पास जो भी काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे वो। ऑलराइट, फिर वापस आते हैं इस पे। तो ये अपना स्कीम हो गया कवर। करते हैं पोषण अभियान। तो तो पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स prevent and reduce stunting in children 0 to 6 years, 6% at 2% per annum। दूसरा है prevent and reduce underweight in children, वही 6 साल तक। तीसरा है reduce prevalence of anemia among children 6 to 59 months। चौथा है reduce the prevalence of anemia among women and adolescents girl in age group of 15 to 49 years। एंड पहला सबसे लास्ट है रिड्यूस लो बर्थ वेट। ठीक है, तो अब आते हैं फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एम टू रिड्यूस malnutrition इन द कंट्री बाय 2022 इन अ फेज्ड मैनर through a life cycle approach by adopting synergized and result oriented approach। पढ़ो। divided between states। हाँ पढ़ो। हाँ, सेंटर एंड स्टेट ड्यूटीज। इसके पिलर्स क्या है, पोषण अभियान के ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड, वो जो है CAS कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है कन्वर्जेंस बिहेवियरल चेंज IEC एडवोकेसी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनोवेशन इंसेंटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल। इन अक्टूबर 2020 नीति आयोग रिलीज थर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट कवरिंग द पीरियड। जी स्क्रॉल कीजिए। पीरियड बिटवीन अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2020 तक, इन विच इट बैटर्ड फॉर पोषण प्लस स्ट्रैटेजी रेफर टू। अरे भाई हाँ, तो ये जो पोषण अभियान है ये मैल न्यूट्रिशन और अंडरवेट और लोअर बर्थ वेट और एनीमिया जैसे डिजीज को मतलब काउंटर करने के लिए है। तो इसमें क्या फीचर्स है, ये एक फेज वाइज मैनर में है थ्रू ए लाइफ साइकिल अप्रोच और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है। 50% बाय एनी मल्टीलैटरल बॉडी और या फिर वर्ल्ड बैंक बता दो, और जो बाकी के 50% है तो ये स्टेट और सेंटर के बीच डिवाइडेड होता है। तो इसके पिलर्स क्या है, ICDS है, बिहेवियरल चेंज, ट्रेनिंग कैपेसिटी, कन्वर्जेंस, इनोवेशन, इंसेंटिव्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल्स। तो 2000 जैसे हमने बताया ना फेज वाइज मैनर, तो
अक्टूबर 2020 में नीति आयोग ने अपना तीसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट डाला था, जिसमें वो पोषण प्लस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो स्कीम हुई ना कि सारी स्कीम्स को एक जगह कन्वर्ट करके और ये जो पोषण अभियान के जितने भी टारगेट्स हैं इनको डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू आउटपुट लाना, मतलब और ये टारगेट ओरिएंटेड मैनर में या रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी आई थिंक इसका टारगेट शिफ्ट कर दिया ये कोरोना के चक्कर में, मतलब टारगेट मतलब बहुत जो प्रोग्रेस था वो भी लॉस्ट हो गया। अब शायद 2027 कर दिया इन्होंने इसके लिए। अभी आई थिंक शायद फॉर्मल डिक्लेरेशन आया नहीं, बट शायद न्यूज़ में था कल परसों में। ना रिसेंट रैंक क्या था माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन तो कोई रिपोर्ट होगा ना, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो अपना रैंक 94 है ना, 2020। ऐसा कुछ निकला था जिसमें 50% वुमेन इंडिया की या चिल्ड्रन है वो अनीमिया या माल न्यूट्रिशन ऐसा कुछ आया था। एनीमिया था, माल न्यूट्रिशन तो फिर बहुत डेंजर हो जाएगा। एनीमिया था, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वुमेन वर एनीमिक। तो आई थिंक ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में निकला। ये स्टंटिंग मतलब होता है कि लो हाइट, और वेस्टिंग मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट पब्लिश अचीवमेंट्स ऑफ दिस स्कीम्स इन प्रीवियस 6 साल। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट जेंडर बायस्ड sex selective elimination, ensure survival and protection of girl child, and education and participation of girl child। के फीचर्स क्या है? ये पहले शुरुआत की गई थी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 22 जनवरी पानीपत में। और ये जो स्कीम्स है इट एड्रेस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, CSR एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ओवर ए लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूम। तो ये एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है ऑफ मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो ये क्या है? हाँ, तो की एलिमेंट्स क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ PC and PNDT एक्ट, नेशन वाइड अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कैंपेन एंड मल्टी सेक्टरल एक्शन इन सिलेक्टेड 100 डिस्ट्रिक्ट, लो ऑन CSR इन द फर्स्ट फेज 2014 से 15 जो था, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन माइंडसेट चेंज थ्रू ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस रेजिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ऑन ग्राउंड। और इसका भी पैन इंडिया एक्सपेंशन भी हुआ है, कवरिंग 640 डिस्ट्रिक्ट एज पर सेंसस 2011 एज इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2018। तो 2 कंपोनेंट्स है बेसिकली, एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेन, और दूसरा है मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन इन सिलेक्टेड जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट, वर्क्स ऑन CSR। तो ये स्कीम्स में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल का कैश ट्रांसफर, और इट इज अ नॉट DBT स्कीम। ये क्या करता है? इंटर सेक्टरल और इंटर इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्रासरूट लेवल्स एज इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी। टारगेट ग्रुप क्या है? प्राइमरी है यंग एंड न्यूली मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, पेरेंट्स में है यूथ, एडोलेसेंस, बोथ जेंडर, in-laws, medical doctor practitioners, private hospital, nursing homes and diagnostic centers। और फिर है tertiary, PRIs, frontline workers, women SHG, religious leaders, voluntary organization, media, medical association, industries association, general public। फिर क्या है? मॉनिटरिंग जो की जाती है ये नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल में की जाती है। यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है डिजिटल गुड्डा। हाँ वही। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड टू अपडेट मंथली बर्थ स्टैटिस्टिक्स। So it has been adopted by as a best practice under these schemes by Ministry of Women and Child Development। अचीवमेंट क्या है? पहला है एटीट्यूडनल चेंज। ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है या फिर एजुकेशन जो कमी होती है इसको पहले फोकस किया गया और अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन किया गया रिगार्डिंग
जेंडर बायस एंड रोल ऑफ कम्युनिटी इरेडिकेटिंग। अब आते हैं मॉनिटरेबल स्कीम। सेक्स रेशियो जो था वो इम्प्रूव हुआ है बाय 2 points इन ईयर। फिर आता है रिड्यूस जेंडर डिफरेंशियल अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट from 7 points in 2014 to 1.5 per year. At least 1.5% increase in per year institutional deliveries. So ये है increase enrollment of girls in secondary education by 82%. Provide functional toilet schools and selected district. Then आता है improve the nutritional status of girls by reducing number of underweight and anemic girls under 5. And then आता है implementation of POCSO Act. Then आता है ensure universalization of ICDS. Train elected representative grassroots functionaries as community champions to mobilize community to improve CSR and promote girls education. तो अब आते हैं इसकी अचीवमेंट्स क्या है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमने पढ़ा ना 1.5 बढ़ा है, ठीक है। तो नीचे थोड़ा जाइएगा। सेक्स रेशियो इन्होंने बताया 918 to 934 और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 13% है और इंस्टीट्यूशनल 87% है। थोड़ा नीचे कीजिएगा। हेल्थ जो है ये अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करें 94% और इंस्टीट्यूशन 6% और यहाँ पे गर्ल्स जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ये है 50 ये 81.32 और जो स्कूल एंड विद फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स है वो है 95.1। 2018-19 में। तो ये था पूरा स्कीम, एक बार फटाफट वो कर दो। हाँ, तो ये स्कीम्स जो है ये 3 मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये पहला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, ये जो है जेंडर बायस सिलेक्टिव एलिमिनेशन, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, फिर आता है एजुकेशन। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव तीनों मिनिस्ट्रीज के हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। 3 फेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कैश ट्रांसफर का सीन नहीं है या फिर कोई डीबीटी नहीं है। और ये क्या है, मीडिया कैंपेन के द्वारा होता है और मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन। तो अभी हाल ही में 640 डिस्ट्रिक्ट आज पर सेंसस 2011 के अंतर्गत इसके अंदर अभी काम कर रहा है। तो इसको भाई जी थोड़ा ऊपर कीजिएगा। हाँ, ये स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री 2015 में शुरू किए थे। तो टारगेट ग्रुप क्या है, प्राइमरी है यंग एंड मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सेकेंडरी में है यूथ और एडोलेसेंट बॉयज, इन लॉज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम्स। और टर्शियरी में है ऑफिशियल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एसएचजी, रिलीजियस लीडर। तो इसमें एक बोर्ड की बात जिक्र की गई है जिसके अंतर्गत जो डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन जो होता है इसको डिसेमिनेट किया जाएगा और मंथली अपडेट किया जाएगा, जो बर्थ स्टैटिस्टिक है बेसिकली। और जैसे हमने पढ़ा है इसमें एटीट्यूडनल चेंजेस की फोकस किया गया है। तो इसमें क्या है, मतलब इन जो एजुकेशन की कमी थी उसको बढ़ावा दिया गया है। वो जो टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट, उसी की भी बात की गई है, अवेयरनेस की बात की गई है और सेंसिटाइजेशन ऑफ मासेस। तो इसमें देखा गया कि हाँ सॉरी क्या है, हाँ भाई जी थोड़ा नीचे कीजिएगा। 1.5% पर इंक्रीज हुआ है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और एनरोलमेंट भी बढ़ा है 82% और जेंडर डिफरेंशियल्स वो भी कम हुआ है। तो और सेक्स रेशियो भी बढ़ा, मतलब इम्प्रूव हुआ है बाय 2 points इन अ ईयर। आता है वही टॉयलेट की बात की गई है, तो वहाँ पे प्रावधान किया गया है बहुत सारे। और ये जो अंडरवेट और एनेमिक गर्ल्स है अंडर 5 years उनको देखने, उनको उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया गया है। पोक्सो एक्ट भी इसके अंतर्गत
इम्प्लीमेंट। और ICDS का भी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। और जो ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रास रूट लेवल पे उनकी पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया गया है एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन और इम्प्रूव CSR। ठीक है, नेक्स्ट इज नीति आयोग। हाँ, अब आते हैं नीति आयोग, जो कि तो इसका है अटल इनोवेशन मिशन। तो इसमें क्या है, 2 अप्रैल 2021 में CSIR ने अडॉप्ट किए 295 अटल टिंकरिंग लैब्स established by अटल इनोवेशन मिशन नेशन वाइड। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि प्रमोट द मतलब थोड़ा रिसर्च का सीन होगा, इनोवेशन का। To create and promote an ecosystem for innovation and entrepreneurship across country at school, university, research institution, MSME and industry level। एक अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी, जो कि अलाइनमेंट ऑफ इनोवेशन पॉलिसीज बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड सेक्टोरल इनोवेशन स्कीम्स। इसमें क्या है, ये लॉन्च किया गया था टू क्रिएट एंड प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री। इसका एक होलिस्टिक अप्रोच है। पहला स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, MSME, NGOs, मिनिस्ट्री एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल। इसके 2 कोर फंक्शन है। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन से थ्रू better should be supported and mentored to become successful entrepreneurs or innovation production promotion to promote a platform where innovative ideas are generated। तो इसके फ्रेमवर्क ये इंक्लूड करता है। पहला है अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स जो है, ये बेसिकली बच्चों के लिए है, मतलब 6 to 12 टू लर्न इनोवेशन स्किल एंड डेवलपमेंट आइडियाज। इनका एक मैराथन होता है जिसमें ये सेक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल क्लीन एनर्जी, वाटर रिसोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीटेक। तो इनका इनोवेशन के लिए इनको थोड़ा प्रावधान दिया जाता है। देन आते हैं आपके कॉलेज में शायद होगा ये वाला अटल इनको इंक्यूबेशन सेंटर एंड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो कम्युनिटी से नाम से वही NGO में यही होगा। और ये जो है AIC, ये यूनिवर्सिटी में ही फोकस है, वही एंटरप्रेन्योरशिप फोकस थोड़ा। देन आता है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस एंड अटल ग्रैंड चैलेंजेस का है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट क्रिएशन फॉर सोशल एंड कमर्शियल इम्पैक्ट। देन चौथा है मेंटर इंडिया कैंपेन। इट इज ए स्ट्रेटेजिक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव टू एंगेज लीडर्स हु कैन गाइड, मेंटर students, industries, academia, and government global collaboration as a key to success। तो NASSCOM जो है, ये नीति आयोग ने उसके साथ हाथ मिलाया है to roll out AI modules in Indian schools to leverage full potential of अटल टिंकरिंग लैब्स। जैसे हमने पढ़ा था, वो स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स है ऊपर। तो क्या है, हाँ, the module contains activities, videos, experiment that enables student to work through and learn through various concept of AI। और ये जो initiative है, it plays a important contributionary role in advancement of India from a position of 81 in the Global Innovation Index in 2015 to 48 in 2020। आत्मनिर्भर भारत अराइज, ये अभी न्यूज में था हाल ही में। तो क्या है इसमें, लॉन्च अंडर AIM टू स्पर अलाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन MSME एंड स्टार्टअप। यहाँ पे जो प्रोग्राम है, इट इज ड्रिवन बाय इसरो। 4 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और एक है अर्बन एंड होम अफेयर्स। 4 मिनिस्ट्रीज है टू एसोसिएट इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सेक्टोरल प्रॉब्लम्स।
है, तो ये वाला अपडेट है यहाँ पे। एक बार ये वाला समराइज कर दे वापस, अटल अराइज वाला नया है। अराइज है नहीं इसमें 8 मैंने क्या बोला। है 4। हाँ बोलो बोलो। अराइज जो है ये मैंने वही अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एमएसएमई और स्टार्टअप को डील करता है। इन्होंने वही बताया ना, इन्होंने क्या बोलते हैं आप, कैटेगराइज कर दिया है। तो ये वाला जो है ये इंडियन एमएसएमई और स्टार्टअप को है, ड्रिवन बाय इसरो, और 4 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, एचएफडब्ल्यू एंड एचओयू है। और जो इंडस्ट्रीज, बाकी इंडस्ट्रीज को भी इन्होंने प्रावधान दिया है। पीएमओ। हाँ, तो पीएमओ लास्ट कोई लड़की पढ़ लो भाई, लक्ष्मी होती है। मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। पढ़ो। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एड्रेसिंग कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस and simultaneously monitoring and reviewing important programs and project of Government of India as well as projects flagged by state government. ठीक है, salient features है multi-purpose and multimodal platform है that uniquely bundles 3 latest technology: digital data management, video conferencing, geospatial technology. ठीक है, गवर्नेंस के लिए ये अपन ने कौन सा पोर्टल पढ़ा था ई गवर्नेंस के लिए, यही था क्या? हाँ ये भी था, सीपी ग्राम्स भी था। ठीक है। A 3-tier system comprising of PMO, Union Government Secretaries, and Chief Secretary of the state. It ensures cooperative federalism as it brings on one stage the Secretaries of Government of India and the Chief Secretaries of the states. It will strengthen and re-engineer the databases of CP grams for grievances, project monitoring group, and the Ministry of MOSPI. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पे ना उसका पीएम होता है ना कुछ हेड? नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग रहते हैं। मतलब जैसे अभी हम पीएलआई स्कीम्स में देख रहे थे ना, वहाँ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बना रखा था, कुछ में कोई और एजेंसी को बना रखा था। तो ठीक है, तो 3 ही पिलर्स है इसमें: डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। 3-टायर सिस्टम है, पीएमओ, फिर यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हेल्प करेगा और सीपी ग्राम से अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो। ठीक है, समाप्त। आज 2 चीजों का समापन हो गया। पलाश जी है क्या? क्या हो गया? अरे डालो ना वो गाना। कौन सा गाना? वही स्नूप डॉग का जो पिछली बार डाला था। अच्छा, कौन सा? अरे वो पिछली बार इन्होंने डाला था ना। अभी ये बताओ अभी क्या करना है? एथिक्स पहले, एथिक्स फिर स्टेट कर लेंगे। नहीं ऐसा करते हैं, आज स्टेट ही कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ सही है, एथिक्स मत करो आज। हाँ विजय जी वो डालो, फिजिक्स डालो। ठीक है, आज यूपी ना, यूपी करना है ना? यूपी नहीं, कर्नाटका। नहीं यूपी करेंगे ना। ये है क्या बच्चे? यूपी थोड़ा बड़ा स्टेट है, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन भी लगेगा और अरे कोई प्रिपरेशन नहीं लगेगा। यूपी ही गोवा कर लो फिर। अरे नहीं हो जाएगा। दादा भी चले गए, अभी देखा शक्तिमान भी चला गया। और अरे सुनो उसके पास पीडीएफ है, उसमें सब दिया हुआ है। अरे अभी आज तो पहले हम राजस्थान करेंगे, थोड़े देर 15 मिनट, आप 10 मिनट करा दीजिए हमको राजस्थान, और फिर हम आपको अच्छे से यूपी पढ़ाएंगे। ओ भाई इसने आदित्य वाले सारे गुण ले लिए।
कौन से गुण? भाई डर मैंने लग क्या रहा किया? है। ठीक है, पीडीएफ डाला है। ओके, स्टार्ट कर दो यूपी जल्दी जल्दी। नहीं राजस्थान, देखिए अभी क्या है कि राजस्थान से होगा ना तो ऐसे लगेगा कि स्टार्ट से कर रहे हैं, ऐसे क्या है ना कि बीच अरे से तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हम तो अभी बिल्कुल भी अरे हम लिख के दे रहे हैं कि राजस्थान हो जाएगा, बस एकदम से इमीडिएटली मत करो, थोड़ा हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, थोड़े 2-3 दिन बाद कर अरे लेंगे तो फिर देखिए अभी हम यूपी का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने स्टार्ट किया है, 2-3 दिन में वो भी मैं कर लूंगी। और थोड़ा सा खुद का मेरा मतलब, मैंने जो यूपी स्पेशल तो पूरी बुक पढ़ी हुई है तो बहुत ज्यादा है, तो अब उसमें से थोड़ा अपडेट करके थोड़ा इसमें से लेके अच्छे से बता देंगे। ऐसे क्या है कि मुझे लगेगा ना कि पूरा ओवरऑल, क्योंकि हम भी यूपी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, कर्नाटका पढ़ते हैं, विजय जी हाँ पढ़ाएंगे आज। विजय जी कर्नाटका, आप अपना कर्नाटका पीडीएफ डाल डालिए, दे। आप पढ़ाइए। कर्नाटका डाल दे भाई। ये फंसा दिए देखे। एक काम करते हैं, ओके, उड़ीसा डालता हूँ अभी, ठीक है। भाई हाँ, और इनका मैं एसबीआई तीन का बार एग्जाम है ना, शाश्वत जी का। हाँ ना वेस्ट बंगाल करो, ठीक है। शानू है। और कौन कौन से स्टेट्स है यहाँ पे सब? हाँ बोल दो ना, कौन सा झारखंड से स्टेट। नीति, झारखंड से यूपी, नीति और आंध्रा से भी है ना दीप्ति। आंध्रा। ओके दीप्ति, युल डू आंध्रा। अभी हरियाणा और वेस्ट बंगाल दोनों कर दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। मुझे एटलीस्ट एक दिन का चाहिए। होने के वाला है स्टेट्स में। अरे वो पीडीएफ है यार, बस पीडीएफ है, वी ऑलरेडी गॉट द पीडीएफ में तो कर सकते हैं शायद। आकांक्षा करने वाली है महाराष्ट्र। मेरे स्टेट में लगाओ, ठीक है, मेरे स्टेट में लगाओ। महाराष्ट्र की तो माने जी है, माने जी। माने जी। कोई एक स्टेट बोल दो। हाँ मैं मेरा स्टेट बताऊँ, उड़ीसा लगाओ, ठीक है। उड़ीसा हो गया ना, वही ले लो। ठीक है, उड़ीसा बी लाइक शाश्वत। हाँ अभी बोल रहे हो ना, कल रात राजस्थान पढ़ लिया भाई अकेले अकेले।